Prime Minister Narendra Modi turns 72 today. To celebrate, the BJP is holding a 16-day-long celebration called Seva Pakhwada from September 17, which will conclude on October 2nd, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of the nation. With the Prime Minister's second term nearing completion, we take a look at his journey to date. अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। Prime Minister Narendra Damodar Das Modi has turned 72. A journey full of milestones. So many memories, so much emotion. Many promises, many pledges. 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का हिम्मा उठा करके चलना होगा। People accompanying him have so much to share. एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो लोग भी मोदी जी के जन्मदिन को मनाते हैं, मनाना चाहते हैं, वह सेवा के माध्यम से मनाएं, वह स्वच्छता के माध्यम से मनाएं, वह गरीबों की सेवा से बनाएं, वह किसी अनाथालय में जाकर के बच्चों की सेवा करें, वह किसी जहां कृत्रिम अंग किसी को दान दिए जाते हैं वहां जाएं, वो मरीजों की चिंता करें, वो रक्तदान करें, वह पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण से अपने आप को जोड़ें, प्लास्टिक से इकट्ठा करें। ये सब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली के दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन सब चीजों के लिए लोगों को प्रेरित किया है। The illuminating Kartavya Path in Delhi illustrates the entire story of his life. The Statue of Unity in Gujarat has already been telling the story of his passion for patriotism. Close to 1,69,000 villages of this country contributed. So we got 1,69,000 odd boxes, maybe 253, 16925 boxes, which had one piece of metal that was used by the farmer within his field. Speaking the mind, what couldn't be said came out in the form of tears. मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। Many lives changed. एक गांव की निवासिनी, मेरी घरेलू महिला सहयोगी, मैंने उससे एक बार हंसकर कहा कि चुनाव में किसको वोट दोगी? तो उसने कहा मोदी जी के दे भाई। तो हमने कहा क्यों, मोदी जी को क्यों दोगी तुम? हमरा बाप दादा अंधेरा धुंधेरा में जी के मर गए थे, और हमनी के घर में अब चकाचक बत्ती जल है, ये मोदी जी के देन है। 21 years as an elected head of constitutional post, but the journey towards the goals is still on. साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। Prime Minister Modi's second term is heading towards completion, but thoughts continue to churn out new dreams and objectives. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए।
The Pradhan Sevak has turned duties into the nucleus of national politics. But in his heart still resides the same Swayam Sevak of Vadnagar, who has seen the entire journey from being ordinary to becoming extraordinary. Prime Minister Narendra Modi's first encounter with the Rashtriya Swayamsevak Sangh occurred when he was just 8 years old. Now he is one of India's most successful self-made political figures with the Bharatiya Janata Party. Let's take a look at his journey from RSS to the BJP. On the plank of cultural awareness, the RSS built a strong ground for itself in Gujarat in the 1960s. At 8, Narendra Modi had already taken experience of Sangh Shakhas. He joined an RSS Shakha in Ahmedabad in 1967 after spending 2 long years in the Himalayas. बहुत बहुत बधाई हो साहब। सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ भैया क्या हाल है? Narendra Modi got immersed in the Sangh's discipline and policies. He would complete all assignments with full honesty and integrity. He gained a lot from the experience and seniority of Vakil Sahab, Lakshman Rao Inamdar. Because of his dedication, Narendra was made a full-time Sangh Pracharak in 1972. He started touring all of Gujarat. This was the time when he began to understand the dynamics of caste, religion and communities. ये बड़ी दिलचस्प मुझे कहानी मेरी समझ में आई। मैंने सारे कार्यकर्ता बुला लिए। हमारे अग्रवाल सभा है, धर्मशाला है, उसमें मैंने बैठक बुलाई। लगभग उसमें 300 के करीब कार्यकर्ता होंगे। तो बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने से के बाद उन्होंने अपने विचार में पता क्या कहा कि भाई जब मैं प्रचारक निकला तो मेरी मां ने मुझे कुछ धनराशि दी थी कि अब तू प्रचारक तो जा रहा है, मान नहीं रहा, लब ये धनराशि ले जा भाई, और तू जो है कहीं जरूरत पड़े तो रख लेना। और आज उसे मुझे कितने साल हो गए, वो धनराशि आज भी मेरी जेब में रखी है। और जेब में रखी है क्योंकि हम प्रचारक हैं, जहां जाते हैं वहां भोजन मिल जाता है। आप जैसे कोई बंधु 1-2 जी कपड़ा बनवा देता है, और ये मेरा थैला है, इसमें 2 जोड़ी कपड़ा, 1 तौलिया और कच्छा, और अपना घूमता हूं। कोई हमें वो हमारी आवश्यकता कुछ है नहीं। The popularity of Narendra Modi soared as Sangh Pracharak, and the reason behind that was his organizational skills and his impressive clarity of thought. वहाँ पे एक संघ का वर्ग होना था, तो वहाँ पे नरेंद्र भाई हम सबको एकत्रीकरण सूरत महानगर का करके सभी लोगों को लेके गए थे, और वहाँ पे कई बबूल के पेड़ लगे हुए थे। और बबूल के पेड़ होने के कारण नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि ये सभी कार्यकर्ता मिलके जमीन को समतल बनाएंगे और उस जगह पे फिर वर्ग होगा। उस वक्त के हमारे सुशील जी पोधार करके एक सूरत के उद्योगपति कार्यकर्ता थे, उनका आग्रह ऐसा था कि ये कार्य तो उनकी फैक्ट्री के कुछ मजदूर आ जाएंगे ट्रैक्टर के अंदर और आके समतल बना देंगे, हम कार्यकर्ताओं को करने की आवश्यकता नहीं है। मगर नरेंद्र भाई का आग्रह ऐसा था कि ये कार्य सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है तो हमको ही करना चाहिए। His day would start before sunrise. He would mingle with people till late night, inspire them to be part of the Sangh's cultural programs. When his colleagues recount those days, they shed light on the thought that drove Narendra Modi ahead. किसी कार्यकर्ता के घर में गए, उनका उस समय कोई वो कार्यकर्ता बंदूक खाना खा के उठे थे, वो अपने धर्मपत्नी को आवाज लगा
उठा रहे थे, नरेंद्र भाई आए तो उन्होंने कहा भाई वो आवाज लगा रहे, वो काम कर, आप खुद उठ के वर्दी रख दो। एक उन्होंने जो कहा कि एक छोटे छोटे परिवार की भी चिंता करना, भाई अपना काम खुद करो, खुद पे करो। It was Indira Gandhi's government at the centre. Political instability was at its peak, and Gujarat was in the grip of communalism. Then began a new nation-building campaign against the central government. With his ideas and thoughts, Narendra Modi turned it into a people's movement in Gujarat. When a state of emergency was declared, Narendra Modi carried out his responsibilities as part of the movement in disguise. By that time, Narendra Modi had come in contact with all top leaders of the Jan Sangh as well as the RSS. The Jan Sangh became the Bharatiya Janata Party in 1980. That was when Narendra Modi was sent from the RSS into the BJP. He became member of the party Unity Gujarat. Prime Minister Narendra Modi served as a bridge between the Sangh and the party and expanded the BJP's base among the people and is one of the pillars behind strengthening the BJP's presence in Gujarat. Here's a report. Stalwarts like Shankar Singh Waghela, Kashi Ram Rana and Keshu Bhai Patel were the faces of Gujarat BJP. Narendra Modi served as a bridge between the Sangh and the party and expanded the BJP space among the people. Narendra Modi was on the job. The time was ripe to bring to the ground whatever he had learned as a pracharak. हमने बोला 140 गांव है, 140 गांव में से 500 लोग आएंगे और वो भी आपका लक्ष्य 500 लोगों का, वो कैसे चलेगा? तो हमने बोला नहीं 500 तो आ जाएंगे, 500 नहीं, आप लक्ष्य 5000 का रखो, 5000 के ऊपर आप काम करो, उनका आयोजन करो, गांव-गांव में जाओ, ये सम्मेलन की बात रखो और व्हीकल करो, साधन आने जाने का जो भी इंतजाम करना वो करो, स्थान भी ऐसा ही नक्की करो जहां 5000 लोग बैठ सके और ऐसा प्रयत्न करके आप चालू करो। तो उनका परिणाम ये आया, हमारा जो सम्मेलन था उसमें 2000 लोग आए, जो हम लक्ष्य 500 लोग रखते थे, इसमें 250-300 आने वाले थे, लेकिन 5000 लक्ष्य रखा तो 2000 लोगों का हमारा बड़ा सम्मेलन हुआ। Narendra Modi headed forward with Sangh legacy. For him, any single event presented an opportunity to turn it into a people's movement. एक होनी चाहिए संवेदना, दूसरी होती है ह्यूमन रिसोर्स को मोबिलाइज करना। He very well understood the evolving political aspirations in a large section of the public. नवसारी में 89 में उन्होंने एक बातचीत की थी, वार्तालाप किया था कार्यकर्ताओं के साथ में, लोगों को उत्साह कैसे दिला जाए, कार्यकर्ता उत्साहित कैसे हो काम करने के लिए। पूरे देश में थोड़ा माहौल इस तरह का था जैसे 84 के जो इलेक्शन थे उसमें लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वैसे कमबैक इतना अच्छा कर सकती है, जो किया बाद में। तो हरियाणा का उदाहरण दिया उन्होंने। हरियाणा में 87 में इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकदल के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और थम्बिंग मेजोरिटी से सरकार बनी। 4-5 लोग, कांग्रेस के 5 लोग ही 60 में से जीत पाए। Public participation held the key to bring the BJP closer to victory in Gujarat. He travelled extensively across the state and had his finger on the pulse of its people. He launched a campaign aimed at bringing ordinary people beyond the party and positions into the fold of the movement for a change. For that to happen, Sabka Saath, Sabka Vikas was a must. टैक्साइल के थ्रू कैसे आप सहयोग कर सकते हो पार्टी को,
तो हमने कहा साहब वो बढ़िया मफलर बनाते हैं, अगली बार आप आएंगे तो सबको पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बढ़िया मफलर बना के थे। तो कॉटन में हमने बहुत अच्छे मफलर बहुत बड़ी संख्या में बनाए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को बंटवाए थे, मोदी जी के हाथ से ही बंटवाए थे। तो मोदी जी का यही आग्रह रहता है भाई किसी ना किसी तरह आप समय नहीं दे सकते, आप प्रवास नहीं कर सकते, पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, तो आप धन से मदद कीजिए, लिटरेचर छपवा के दे दीजिए, बैनर बनवा दीजिए, झंडा बनवा दीजिए। तो इस तरह से लोगों को तैयार करना हमने देखा है कि बहुत लोगों को इस तरह से उन्होंने तैयार किया जो पार्टी को फंडिंग में काम करते थे। Skilled in oratory, Narendra Modi would develop a strong bond with the workers when he identified them with their names in the crowds. That's something which even today makes Narendra Modi more popular in public than other leaders. छोटे कार्यकर्ताओं को अलग से बुलाना, उसके साथ में आत्मीयता का भाव रखना, किसी भी के घर पे जाके मिल लेना, आम कार्यकर्ता से संपर्क रखना, नाम से बुलाना। नाम से बुलाना एक बड़ी इतनी अच्छी चीज है जीवन में। आप किसी को नाम से अगर बुलाते हो तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। मुझे हमेशा प्रेम जी जैसे दूर से बुला के प्रेम जी करके, एग्रीकल्चर महोत्सव हुआ नवसारी में, मंच से उतर रहे थे, मेरे ऊपर निगाह पड़ गई, दूर से बुलाया, अरे प्रेम जी कहाँ हो आप, इधर आओ। तो इतना मतलब कितने लोगों को नाम से बुला सकते हैं गुजरात के हर शहर हर गांव में, ये समझना बिल्कुल असंभव है लोगों के लिए कि इतने लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे नाम से बुला सकते हैं। Keshubhai Patel and Shankar Singh Waghela were two powerful axes in Gujarat BJP, but gradually Narendra Modi started emerging as the third power. Some people weren't even very fond of him. Narendra Modi knew about this, but he wasn't in the mood to hurry. Patience has been his biggest strength since the beginning. By the beginning of the last decade of the 20th century, BJP popularized itself on the issue of Ayodhya's Ram Temple movement. Lal Krishna Advani had decided to carry out a Rath Yatra from Gujarat's Somnath to Ayodhya. Narendra Modi was the main manager of the Yatra. इस आंदोलन ने 370 पर देश भर में बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन ने देश भर में उग्रवाद का सामना किस प्रकार से करना पड़ेगा, इस पर बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन ने पाकिस्तान की इस मामले में क्या भूमिका है, इसकी बहस छेड़ दी है। न केवल देश के अंदर लेकिन विदेश में भी, सारे विश्व भर में इसकी बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन के अनेक सुपरिणाम हैं। आने वाले 2 दिनों की घटनाएं मुझे विश्वास है कि एक कैटलिस्ट का काम करेंगी, जो कैटलिस्ट हिंदुस्तान की एकता पर पिछले 40 सालों में सबसे भयानक और भयंकर संकट जो पैदा हुआ है, उस संकट को हमेशा के लिए निर्मूल कर देगा। Although the Rath Yatra could not reach its destination, the party leadership was impressed with Modi's management. Being the party president, when Murli Manohar Joshi carried out an Ekta rally from Kashmir to Kanyakumari, Narendra Modi was given important responsibilities. Narendra Modi hoisted the tricolour at Kashmir's Lal Chowk, an act which associated the nationalist tag with an already religious party. जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया है। भारत माता की। और 26 जनवरी को डॉक्टर जोशी जी श्रीनगर के लाल चौक में जा रहे हैं, पता बता के जा रहे हैं, लाल चौक तारीख घोषित करके जा रहे हैं। 26 जनवरी कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बुलेट प्रूफ
जैकेट पहन के नहीं आ रहे हैं और न ही वो बुलेट प्रूफ कार में बैठ के आ रहे हैं। Riding over the dual issue of religious rights and nationalism, although the BJP got a majority in Gujarat in 1995, the internal tussle between Waghela and Keshubhai came to light. It was only after Atal Bihari Vajpayee's intervention that Modi was made the party's national secretary and in charge of 5 states, and he was sent out of Gujarat. For Narendra Modi, who understood Gujarat's politics well, the politics of Delhi was a big responsibility. He was sent to Delhi to keep him away from the politics of Keshubhai and Waghela. Modi utilized this time in understanding the country, which helped him a lot in racing ahead for the Prime Minister's post. Here's the report. 1999 में जब वो आसाम आए थे, तब मैं स्टेट में ऑफिस सेक्रेटरी था। तब उन्होंने बोला कि तुम लोग काम नहीं करते ठीक से। तो मैंने बोला कि तब चुनाव हो गया था 99 का। तो मैंने बोला कि सर, हम लोग तो चुनाव में 33% वोट मिला है और गवर्नमेंट जो चल रहा है अभी एजीपी का, उनको 35% मिला है और 33% तक हमको किसी ने कोई ट्रेनिंग कोचिंग कुछ नहीं दिया, हमने अपने बलबूते पर आ गया। तब उन्होंने वो बात करते करते हम लोग को फैंसी बाजार तक पहुंचा। तब उन्होंने 5-10 मिनट चुप रहा, फिर बोला कि मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। और फिर बाद में उन्होंने 4 ट्रेनिंग कैंप आसाम में किया और ट्रेनिंग कैंप का एक ही उद्देश्य था, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। Narendra Modi understood the country's electoral democracy while working for the party. The experience gained there is reflected in his modern politics. चुनाव के लिए जो 18 इयर्स एंड अबव होते हैं, उनको हम टारगेट करते हैं कि वो हमारा वोटर है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक्चुअली डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बच्चे से लेकर सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया कि स्कूल में जाना चाहिए, वहाँ में डेमोक्रेसी का कैंपेन चलाना चाहिए और बच्चों को बोलना चाहिए, जितना भी छोटा हो, एलपी स्कूल का भी बच्चा हो, उनको बोलना चाहिए कि चुनाव के दिन घर में सवेरे उठना, कोई बर्तन लेना, कुछ देना और ढांग ढांग बजाना और पिताजी माताजी भाई बहन जो है सबको बताना कि पहले जाओ वोट दो, फिर हमको खाना देना। वो बच्चे का जो मोटिवेशन है वो एकदम छोटे से होता है। तब क्या होता है, चुनाव में 0.5 to 1% वोट भी बढ़ जाता है। Once came a time when he started emerging as big in Delhi's politics as he was in Gujarat. His sagacity and fearlessness got him recognition within BJP. उस समय जोशी जी अध्यक्ष थे, तो दिल्ली में इनकी ड्यूटी लगी कि प्रदर्शन होना है और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वहाँ किसी को फटकने, चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। उन्होंने जो उनका एक थैला बैग रहता था, उस बैग में से अपना ट्रांजिस्टर निकाला। ट्रांजिस्टर ऑन करके बोले, भाई ये एक इसका बटन है, इसको धीरे धीरे घुमाते रहो, कई बारी घुमाना पड़ेगा और इसके अंदर एक पिच जब तुम्हें लगे कि पुलिस की वायरलेस की आवाज आ रही है तो उसको रुक देना। तो काफी देर लगने के बाद एकदम उसने कैच किया। जब कैच करने की एक बार हल्की सी आवाज आई तो कहते बस सब छोड़ दो, लाओ मेरे पास। तो उन्होंने बिल्कुल उस पिच को उस टाइप पे सेट किया जहां वायरलेस की आवाजें हमें सुन रही थी कि वहां 6 लोग आ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करो, वहां वो पटके वाले हैं, इस जगह की खबर है, जंतर मंतर के ऊपर 10 लोग छुपे। मतलब वहां कंट्रोल रूम में शिकायतें या इंफॉर्मेशन जारी थी। तो बोले देखो, अब हम कम से कम बेमौत तो नहीं मरेंगे। It was during these years of the late 90s when Narendra Modi carried the party's nationalist stand during the Kargil War. New Delhi's Nayan Ashoka Road became Modi's residential address. There he used to meet media and other people, but Gujarat was still in his heart. And finally, the day came when one message changed his entire life. Narendra Modi became the Chief Minister of Gujarat, replacing Keshubhai Patel. Now he had the organization for which he invested his sweat and blood. He had the party workers with whom he had spent his struggling days with.
He was a shattered man when Gujarat was badly devastated because of the earthquake. Modi invested himself in rebuilding Gujarat. Modi's personal and political image was at stake when 2002 communal riots broke out. Narendra Modi swept the assembly elections and gave an indication that he can't be defeated easily. मोदी जी की अपेक्षाएं अपने लोगों से, साधारण लोगों से ज्यादा है, ऐसा मैंने देखा। उन्होंने सभी के लिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि भारत की सबसे ऊंची मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा ताकि सारे एमएलएस को और मिनिस्टर्स को पता चले कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। Narendra Modi also started changing BJP's conventional approach. 21वीं सदी महिलाओं की सदी होगी और इसलिए महिलाओं को मंच पर स्थान देना चाहिए। मैं शायद इससे ज़्यादा व्याख्या की अपेक्षा करती थी, मेरी समझ में वो बात पूरी नहीं आई। मैं दौड़ के गई सत्र समाप्त होते ही और मैंने उनसे कहा कि अभी भी क्या हम लोग केवल मंच पर बैठेंगे, अभी भी शोभाई की वस्तु रहेंगे? तो मुझे लगा कि वो थोड़े खिन्न हुए। उन्होंने कहा, क्या प्रोफेसर, यही समझी आप? इसका मेरा तात्पर्य ये है कि महिलाओं को राजनीति में नेतृत्व का अवसर देना चाहिए, उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए मंच पर, उनको स्थान देकर। तो मैंने उनकी बात को समझा। Narendra Modi decided to take earthquake and riot-ridden Gujarat on the path of development. Gradually, the Gujarat model started getting national and global recognition. Amid all this, he never forgot the emotional aspects of politics. गांधीनगर सचिवालय और विधानसभा क्षेत्र के सामने महात्मा मंदिर का निर्माण करने का निर्णय हुआ। अब कोई संपत्ति का निर्माण, कोई भवन का निर्माण, तो कोई मुख्यमंत्री कोई फाइल पे हुक्म करके, ऑर्डर करके, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके ये कर सकते हैं। नरेंद्र भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा, हर्षद भाई, इसके निर्माण में जन भागीदारी हो, जन समूह का इसमें हिस्सा हो और विशेष करके युवा और विशेष करके विद्यार्थी इसके साथ जुड़े, तो ऐसा लगता है कि गुजरात के हर गांव से या हर डिस्ट्रिक्ट से या हर तालुका से स्कूल के बच्चे बसेस में आए, अपने गांव से पानी लाए, नदियों का मिट्टी ले आए और उस मिट्टी से इसके फाउंडेशन में इसका उनका भी योगदान हो और इसके बनाने में उनका कोई श्रम का भी योगदान हो कि लोग श्रम करें, काम करें इसके लिए। और इस जन भागीदारी के इस प्रकार से इस स्वप्न को साकार किया जाए, इस भवन का निर्माण किया जाए। Narendra Modi made a hat-trick of victories by sweeping assembly polls of 2002, 2007 and 2012. On the other hand, Atal Bihari Vajpayee got retired from politics. Lal Krishna Advani was trying to create the party's new image by balancing secularism and the party's ideology. Senior officials of RSS were being targeted by the UPA government. Then, Narendra Modi came to the party's Goa session in 2013 and put forth his candidature. Narendra Modi always chose a big target for himself, be it as an RSS pracharak or the post of Chief Minister. He converted small issues into big events and encouraged the people's participation. When he presented his candidature for the Prime Minister's post, all these skills helped him a lot. इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। Prime Minister Modi learnt the spirit of service by cleaning his own room. When he took charge as Prime Minister, his first focus was on Swachh Bharat. It wasn't a big issue, but it became a people's movement. उस भाषण के अंदर कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर देश में सफाई अभियान चलेगा
हम प्रत्येक कोने में सफाई करेंगे। और देश के लोगों ने भी इसको जो है सराहा है कि मोदी जी ने वास्तव में, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता सफाई के बारे में, केवल अपने घर की सफाई के बारे में सोचते हैं, पड़ोसी की सफाई के बारे में नहीं सोचते। इतना मुझे उनसे मिलकर मुझे सीखने का मौका मिला। He spent a long time among the people. He raised the issue of women's participation while being Chief Minister. When he became the Prime Minister, his welfare schemes reduced the tears of women. Narendra Modi used to put forth the party's views during the Kargil war. He gave confidence by carrying out surgical and air strikes after becoming Prime Minister. Today, borders narrate the tales of valor. Once he travelled from Kanyakumari to Kashmir to hoist the tricolour at Lal Chowk. After becoming the Prime Minister, he repealed 35A and Article 370 and coloured the entire Kashmir with the tricolour. Corona came as the biggest challenge for the Prime Minister. But trust on India's scientists and mentality of turning adversaries into opportunities showed India's capabilities to the world. Discipline was the most important thing while dealing with Corona, and it helped Modi during the tough time. Just like Gujarat's transformation, India's transformation is also underway. Be it Kashi Vishwanath, Ayodhya's Ram Temple or Somnath Circuit. Be it the Atal Tunnel or Bogibeel Bridge, Chenab Bridge or INS Vikrant. The country is seeing changes in all aspects. The tradition of Amar Jawan Jyoti at India Gate has changed. Rajpath is now Kartavya Path. Pictures of the new Parliament building have emerged.